Welcome students to शेखर इंग्लिश क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग द बॉल पोएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। द बॉल पोएम जॉन बेरीमैन ने लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट द पोएम आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। Have you ever lost anything in your childhood? What do you do if you do not find that thing? What is the reaction of your father or mother? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जरूर कोई चीज बचपन में, जैसे खिलौना है या साइकिल है या चॉकलेट्स है, you must have lost it. And after losing it, what do? You start weeping. You must have started weeping, or you must have gone to your parents. Your parents might have pacified you and might have told you that don't worry, I will give you another chocolates, or I will buy another balls for you. ऐसा होता है कि आप बचपन में कहीं कुछ खेल रहे हैं, खिलौना से, गाड़ी से, छोटे छोटे टॉयज से, तो वो कभी खो जाता है तो आप रोने लगते हैं, उसकी जिद करने लगते हैं। तो आप पेरेंट्स आपको देखते हैं रोते हुए, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं तो कि नहीं रो, मैं आपको दूसरा खिलौना ला के दे दूंगा। आई विल बाय न्यू टॉयज फॉर यू, आई विल बाय न्यू चॉकलेट्स फॉर यू। ऐसा होता है। दिस पोएम describes these type of incidents here, but the poet takes here a different approach. What is his approach? We will learn after going through the poem. And beside a river, on the bank of a river, and he is watching. That thing is a ball. He has lost the ball into the water, and he did not know what to do. He is very sad and he is also weeping. So let's see the poem. First of all, let's know about the poet. पहले poet के बारे में जानते हैं। ये poet कौन है? इसके जॉन बेरीमैन, जॉन एलन मैकअल्फिन बेरीमैन was born on 25 October 25th 1914 and died on January 7 1972. He was an American poet and scholar, and he was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in the confessional school of poetry. He is best known for his work The Dream Songs. ये कन्फेशनल पोइट्रीज के बारे में जाने जाते हैं। ये सिर्फ इनका परिचय है, जॉन बेरीमैन। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. कवि कहते हैं, the poet says, what is the boy now? What the boy will do now? वो लड़का क्या करेगा भी? Who has lost his ball? Who has just lost his ball? जिसने अभी भी अपना गेंद खोया है। What is he to do? अरे वो क्या वो करेगा? What will he do? I saw it go. I here stands for the poet. Poet कहते हैं, I saw it go. It here stands for the ball. मैंने वो गेंद को जाते हुए देखा। Where? Merrily bouncing, cheerfully, the movement of the ball. Merrily मतलब हंसी खुशी, happily the ball is bouncing down the street, street से होते हुए, and then merrily over there it is in the water. वो water में, harbor, ये it's a perhaps it is a harbor or beside some bank of the river. We will come to know later on, but here
the poet says that what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily there it is in the water. वो लड़का क्या करेगा जिसने अभी गेंद खोया है? अभी मैंने वो गेंद को जाते हुए देखा, कहाँ? उछलते हुए स्ट्रीट से, और स्ट्रीट्स के बाद वो वाटर में. ठीक है, तो मेरिली मतलब चीयरफुल, और बाउंसिंग मतलब जंपिंग अप एंड डाउन. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor. Now we come to know that it's a harbor. The boy is playing near a harbor. बंदरगाह के बगल में वो लड़का खेल रहा था, और वहीं से गेंद वो नीचे गिर गया पानी में. Where his ball went, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility. Very important part of the poem. Let's say, no use to say, oh, there are other balls. It is worthless to say that there are other balls. ये कहना बेकार है कि क्यों रो रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों दुखी हो, बहुत सारे बॉल्स मिल जाएंगे. बिकॉज द बॉय इज अटैच्ड टू दैट बॉल विच हैज बीन लॉस्ट इनटू द वाटर. वो जो बॉल है, वो जो खो गया है, उसी बॉल से लड़का का अटैचमेंट है. ही इज अटैच्ड टू दैट बॉल. इसलिए ये कहना बेकार है कि तुमको दूसरा बॉल दिला देंगे, मेनी बॉल्स इन द मार्केट, ये कहना बेकार है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. ये जो लड़का को है पूरा वो दुख, ग्रीफ मतलब दुख होता है ना, पेन होता है, तो सौरो होता है. वो जो दुख है, शेकिंग हिलाने वाला, बहुत ज्यादा दुख फिक्सेस द बॉय, बॉय को पूरा जकड़ लेता है ना. एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह इधर उधर हिलता नहीं है, वहीं पे खड़ा रहता है और देखते रहता है. ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए. स्टेयरिंग डाउन, नीचे पानी की ओर, है ना. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. वो बंदरगाह में पूरा दिन भर वो वहां पे देखता रहता है, जहां पे उसका गेंद जाके नदी में गिरा और फिर गायब हो गया. All his ball went. I would not intrude on him. मैं कवि कहते हैं कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा. इंट्रूड मतलब हस्तक्षेप नहीं करूंगा. ये नहीं कहूंगा कि बच्चे, boys don't weep, I will give you another ball. The poet does not want to say this. Why? Because see, a dime, another ball is worthless. A dime means ये 10 सेंट्स. जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, वैसे यूएस में डॉलर के बाद होता है सेंट्स, और 10 सेंट्स का एक डाइम होता है. ओके, तो डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस, बेकार है. दूसरा जो बॉल का जो कीमत है डाइम, वर्थलेस नाउ, बिकॉज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको पहला उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है. क्या होता है कि आप कभी यहाँ पे देखो, कभी कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको हस्तक्षेप नहीं करूंगा. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट he senses first responsibility. Who senses? The boy senses first responsibility. वो अपना पहला उत्तरदायित्व का बोध होता है लड़का को. वो दुख सहना सीखता है, वो अपने बॉल का ठीक से केयर करना सीखता है. उसको ये पता चलता है कि अगर मैं ठीक से खेलता, if I would have played properly, the ball would not have went into the water. जो बॉल है वो वाटर में नहीं जाता. उसको पश्चाताप, दुख है, बहुत ज्यादा दुख है. वो दुख को भी
सहना सीख कर रहा है. He is learning to bear the pain. He is learning how to cope with the loss. ये सीख रहा है. कौन सीख रहा है? बच्चा सीख रहा है. इसलिए कवि कहते हैं कि I would not intrude on him. मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा. ठीक है. Let's see next line. What is here? In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. But the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Now, what does it say? In a world of possessions, means belongingness, ownership. You say, na, when you grow up or when you are a child, you say, this is my father, this is my mother, this is my house, this is my toy, this is my village, this is my town, this is my country. So this is a sense of belongingness. Okay. And when you have a sense of belongingness, there is always a fear of losing that thing. Okay. So people, कवि कहते हैं कि इन वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, ये दुनिया में जो ऑनरशिप का भाव है, स्वामित्व का भाव हरदम रहता है, तो ये पीपल विल टेक. बॉल इज ए सिंबल हियर. वो बॉल, पीपल विल टेक बॉल्स. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. बॉल्स इज हियर सिंबॉलिक. बॉल्स हमेशा खोता रहेगा. ये बॉल्स यहाँ सिंबॉलिक है. बॉल्स के रूप में क्या खोएगा? कभी आपका खिलौना खोएगा, कभी sometimes you have to leave your native place and go to town. Sometimes you have to leave your parents and go to some other places for studying or to do work. In this way you are being separated from them, and it will pain you. And always, sometimes like this, you may lose something like some money, or you may lose something like your bike, or in extreme cases we have to now sometimes what happens, our near and dear ones lost their life, and we have to bear the pain of separation, pain of suffering. ये सब है balls. It's just a symbolic term here. और जैसे जैसे हमारा लाइफ बढ़ता है, हम बहुत चीज खोते हैं, हम बहुत चीज पाते भी हैं. And this is a part and parcel of our life. That's why the poet says, balls will be lost always, little boy. आगे में बहुत सारे इस तरह के गेंद खोते रहोगे. And no one buys a ball back. वही बॉल जो तुम खोए हो, उसको कोई तुमको खरीद के नहीं देगा. If you have lost your near and dear ones, money cannot buy it. If you have lost your favorite bike, or say some favorite spectacles, या कोई any other things, तो वही बाइक या वही spectacles आपको खरीद के नहीं देगा. You may have money, you may be rich, you may buy another bike, in fact superior bike, but that bike which you have lost, that you cannot get. That's why money has external value. It is not eternal. It cannot give eternal satisfaction. It cannot give eternal peace. That's why the poet says that money is here external. Money external है, बाहरी है. तो कवि कहते हैं क्या? He is learning well behind his desperate eyes. बोला उसको मत रोको. I would not intrude on him. मैं उस पे हस्तक्षेप पहले स्टांजा में देखा था
नहीं करूंगा ही यहाँ किसके लिए आया है? लड़का के लिए आया है। तो लड़का के लिए आया है तो क्या बोलता है? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वो जो दुखी और होपलेस, आशा विहीन आंखों के पीछे वो एक बहुत ही जरूरी चीज सीख रहा है। वो एक जिंदगी का वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा वो हासिल कर रहा है ना? व्हाट इज दैट? लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। This line is the theme of the poem. This green line contains the main message of the poem, the epistemology of loss, how to stand up. What does it mean, epistemology? Epistemology means, it's a Greek term, means knowledge of loss. How to stand up and how to stand up. किस तरह से लॉस को सफर करना है, वो सहन करना है, सॉरी, हाउ लॉस को सहन करना है और फिर खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। दिस इज द मेन मैसेज। हाउ टू कोप अप विद द लॉस एंड देन हाउ टू स्टैंड अप एंड फेस द लॉस एंड मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, है ना? यही है। Knowing what every man must one day know, ये जानना कि जरूरी है कि जो हर प्रत्येक आदमी को ये चीज जानना चाहिए। And most know many days how to stand up, और बहुत कोई ये जानते हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे लॉस को बियर करना है, and how to again stand up and face the world. So this is a very beautiful poem. Now I want to ask you some questions related to it. Now we will discuss it later on. What is the poem all about? ये poem क्या है? What is the main message of the poem? Write down in your copy. You must have written it. Now I am telling you what is the main message of the poem. The poet John Berryman, in the ball poem here, this poem describes the grief of a boy. The grief of a boy over the loss of his ball. ये जो उसका जो दुख है, वो लड़का का दुख, वो किस चीज के बारे में वो दुख है? कि उसने एक गेंद खो दिया है, लॉस ऑफ हिज बॉल। With that loss, he senses his first responsibility. वो वही लॉस के साथ उसको पहले उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है। क्या है? क्या वो ज्ञान है? इन ए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो भौतिकवादी दुनिया है, ये जो दुनिया विलासिता की दुनिया है, साजो सामान की दुनिया है, where those whom you love and your worldly possessions will not be with you forever, है ना? ये जो और तुम जिससे प्यार करते हो, जिससे तुमको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और तुम्हारा जो वर्ल्डली पोसेशंस है, जो सामान है, गाड़ी है, बंगला है, घर है ना, और भी बहुत सारे सामान से, कीमती सामान से, ये सारा चीज तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। इट माइट बी लॉस्ट, इट माइट बी टेकन अवे, एंड सो we have to be strong. We have to learn this important lesson of our life, that in the world of possessions, ball will be lost. So you have to learn how to cope up with the loss. The harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. This is also one of the main message of the poem. What is that? Again I am reading it. The harsh truth of standing up against the odds. ये कड़वा सत्य है कि जो भी दुख है या दुविधा है, जो जिंदगी में जो कष्ट है, उसको सहन करना, है ना? और how to stand up against the sense of lost things.
और जो हम खोते हैं, जिससे बिछड़ते हैं, जो उसको किस तरह से सहन करते हुए हमें फिर से खड़ा होना है जिंदगी के अगले मुकाबले को फेस करने के लिए, टू फेस न्यू अपॉर्चुनिटी challenges or opportunities of life. And what are the other message? Next, what is the next message that the poet wants to give through this poem? The lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. And one day वी विल लॉस आवर लव्ड वंस, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा लगाव है, या जो सामान से लगाव है, ये सारा चीज नश्वर है ना. वी विल लॉस वन डे. दिस इज द मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव थ्रू दिस पोएम. सो व्हाट्स द पोएम ऑल अबाउट? अगेन आई एम टेलिंग यू, थ्रू दिस पोएम द poet conveys a message to all of us. हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कि ये जो दुनिया में जो हम बोलते हैं कि ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा सामान है, या हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बहुत सारा सामान हमारा होते जाता है, हमारा स्वामित्व होते जाता है, हम नए नए रिश्तों में बंध जाते हैं, है ना. पुराने रिश्ते भी रहते हैं, उन सब से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा चीज़ ये जीवन यात्रा में हम खो भी देते हैं, और उस समय हमें बहुत ही कष्ट होता है. चाहे हम नियर एंड डियर वंस को खो देते हैं, या कोई कीमती सामान, या जो अति प्रिय सामान को खो देते हैं, तो हमें बहुत कष्ट होता है. तो ये बॉल के इंसिडेंट्स से ये बताना चाहते हैं कि अभी से, बचपन से अगर हम बच्चे को ये सिखाएं कि किस तरह से जिंदगी में हमें कोई चीज अगर हमारा खो जाता है तो किस तरह से उसको झेलना है, कष्ट को सहना है, और सहते हुए फिर आगे बढ़ना है. तो वही चीज, इसलिए द पोएट डजंट वांट टू इंट्रूड ऑन द बॉय, एंड ही सेज दैट द बॉय इज लर्निंग एन इम्पोर्टेंट लेसन, लेट हिम learn the lesson. And what is that lesson? The lesson is that of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones or our favorite articles or possessions, and so we have to bear it. This is the main message that the poet wants to give through this poem. So कुछ questions हैं, देखो. तो ये है पहले स्टांजर्स मैंने लिखे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो ये लाइंस क्या है? comprehension, it is just like comprehension questions. In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो ये है स्टांजा. तो इसका क्वेश्चन है, why money is external here, what is the boy learning here, what is the meaning of world of possessions. These are the questions. So let's see the answer. तो पहला का आंसर है money. Why money is external here? Money can't buy the ball that the boy has lost. Money cannot fulfill the sense of belongingness of that particular ball. What is the boy learning here? The epistemology of loss, or how to cope up with loss. अब यह छूट गया है. What is the meaning of world of possessions? The world of possession means that the world is full of materialistic things. It gives a sense of belongingness. तो ये है कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस. अब हम लोग लिटरेरी डिवाइस, जो मुख्य लिटरेरी डिवाइस, ये झारखंड बोर्ड के बच्चों को नहीं पूछा जाता है लिटरेरी डिवाइस प्राय. ये सीबीएसई कोर्स बी जो पढ़ते हैं सीबीएसई में, उनको पूछा जाता है, इसलिए उनके लिए डिस्कशंस है. लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. तो राइमिंग स्कीम, इसके ये जो राइम स्कीम है, नो राइमिंग स्कीम इज फॉलोड इन द पोएम. इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. रेपिटिशन है. व्हाट जो शब्द है बार बार रिपीट किया गया है. देखिए, व्हाट द बॉय विल डू, ऐसा करके रिपीट किया गया है. बॉल विल बी लॉस्ट, बॉल को भी दो बार रिपीट किया गया है. तो ये रेपिटेशन है.
जब एक शब्द को दो बार हम रिपीट करते हैं, एसोनेंस रिपीटेड अ वावेल, जब वावेल साउंड को वर्ड के बीच में प्राय या उसके लास्ट में, जो वावेल साउंड को एक ही वाक्य में अलग अलग शब्दों में एक ही तरह का वावेल साउंड आता है तो उसको बोलते हैं एसोनेंस। जैसे यहाँ बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, वावेल साउंड, यहाँ पे ओ का प्रयोग किया गया। ये ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यहाँ पे देखो बार बार ई का एच के साथ ही यहाँ पे ई का प्रयोग किया गया है, ई का प्रयोग किया गया है यहाँ वेल ई, तो इस लाइन में बार बार वावेल का बीच में प्रयोग किया गया, तो ये एसोनेंस है। अलिट्रेशन का है, स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के साथ स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ वर्ड में एक ही कॉन्सोनेंट का प्रयोग होता है तो उसको अलिट्रेशन बोलते हैं। तो साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स है ना, ये बाइज ए बॉल बैक, यहाँ पे देखो बी 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 क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स है, बी स्टार्टिंग में सब में लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं अलिट्रेशन। इमेजरी, व्हेन पोएट सेज मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये वो एक इमेज क्रिएट करते हैं कि किस तरह से वो बाउंस जस्ट लाइक अ लिटिल गर्ल और एन एंजल, तो बाउंसिंग करते हुए जा रहा है तो वो एक इमेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अनाफोरा इज जस्ट लाइक रिपीटेड रेपिटेशन, लेकिन ये क्या होता है वो स्टांजा के बिगिनिंग में आता है और क्लोजली कनेक्टेड क्लॉजेस में एक ही तरह का शब्द का जब रेपिटेशन होता है तब उसको अनाफोरा बोलते हैं। जैसे व्हाट इज द बॉय, व्हाट द मेरीली, तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही आज का ये पोएम यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसका समरी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप देख के उतार लीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।